Assalamualaikum, welcome back. We start from where we left in last lecture. Now we are going to view our block sections. For that we have to move in our block component section. Here is our block blade component. In this section we are displaying our blocks. Here is the block detail. For block detail, what we have to do here is route block detail slash id and dollar block id. Okay, this is the block detail route. Here we are showing the image. Here is the date. Here is the author. Here is the blog title, and here as well the blog detail as well. In case of that, if there is no blog exist, then it will show the dummy details. This is the blog section. Now we have to view partner section. For that I'm going to view my partner component. Here is the partner section where I'm showing the section title. After that I am getting all the images and exploding commas from it, and after that I'm showing all the images using for else, and in case of that if images not exist, then it will show the dummy details, dummy images. This is about the partner section. After that the last section is mobile application section. For that we have to move our app component blade.php. Here is the app component. In the if the application data exists, then it will show this, otherwise it show nothing. Because of that we are getting in singular form data first, where we are showing first title, then subtitle, after that the image QR code, and after that showing URL and default images of Google Play Store and Apple Play Store, and after that the background image. This is the way how we implement, or I implement my home page sections dynamic. Here I will show you what the backend position positions and actives make changes. In case some of the section hour is not active, then what will happen, and if it's not active, then which section will display first. We have to move in home page sections. Suppose currently the position 1, on position 1 our web banner section, if we make it inactive, now I refresh my page, home page. Now our first section is featured category rather than the banners category, banner section. Now if we are going to change its position, we don't want to show it here, we want to show it on number 10 and number 10 on blogs on our top. Now we are change the position of featured categories, and
the blog. Now what it will happen, the blog section will display on top, and the our featured category will display on position 10. How we will manage our sections? By changing its positions and its status. If admin don't want to show any section, it will make it inactive, or if admin want to share particular section before or after some section, it will give the position or change its position. It will display according to the its position. Now we will make our positions default and make it active and make it 2. Here we are going to show 10 on number 10. Now it will show the banner first and show the default settings of our home page, where section will appear on first, featured categories 2 and other so on. तो इस तरह से हम अपने सेक्शंस की पोजीशंस और एक्टिव और इनएक्टिव के ज़रिए अपने होम पेज को डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बात मेरी समझ आ गई है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था मैं स्विचिंग अपने हिसाब से करूँगा। जहाँ पे मुझे लगेगा मुझे एक्सप्लेनेशन ज़रा डिटेल के अंदर जाकर अपने यूज़र्स को, अपने व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को देनी है, तो मैं उसी हिसाब से करूँगा। दिस इज़ द वे हाउ वी कंट्रोल द पोजीशन of the sections of home page by making its active or inactive or changing its position। ठीक हो गया, ये दोनों चीज़ों में हो गया। अच्छा जी, आप कह रहे होंगे सर ब्लॉग की तो इमेज डिस्प्ले ही नहीं हुई, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ब्लॉग्स के अंदर हम कौन सी इमेजेस को डिस्प्ले मैं कर रहा हूँ, उनका नाम, और बाद में हम उनको पोजीशन वगैरह को देख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हाँ जी, मेरा इसके साथ इशू क्या हुआ है, वी आर नॉट यूजिंग .jpg। ये मेरी सीडर की गलती है, मैंने सीडर में मिस्टेक की थी, आपने उसको सीडर के अंदर मिस्टेक नहीं करनी। अब उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग की कुछ तस्वीरें हमें शो होंगी। ठीक है, इसी तरह तो इस तरह हमारे ब्लॉग की तस्वीरों का जो इशू है वो मैंने आपको बता दिया, इस वजह से शो नहीं हो रही थी। अगर अब हम क्लिक करें तो ये ब्लॉग की डिटेल को भी दिखाएगा, लेकिन इसकी अभी डिटेल का सेक्शन मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो टेंशन नहीं लेनी, जब ये मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तब भी आपको मैं दिखा दूँगा। ठीक हो गया, तो ये हो गया। अब मैं आ जाता हूँ अपने मेन्यू सेक्शन के ऊपर। ये जो इमेजेस ब्रोकन आ रही हैं तो इनकी पोजीशन को भी हमने शो करना है। तो इसके लिए क्या है कि मैंने जो अपना ये जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं नेविगेशन मेन्यू, यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये सही है, ये सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पर जो मुझे कैटेगरी की इमेज शो करनी है तो वो मैं बाई यहाँ पर करूँगा। ओवरले वाली कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा सर्विसेज स्लैश डिफ़ॉल्ट सर्विसेज, इट शुड बी सर्विसेज नॉट सर्विस।
ये देखें, ये हमारी सर्विसेज की अब इमेजेस भी शो हो रही हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा, आ जाते हैं अब हम अपने कैटेगरी के ऊपर। कैटेगरी के अगेंस्ट हम कितनी कैसे इमेजेस को दिखा रहे हैं और ये सॉर्टिंग। पहले सबसे पहले सर्विसेज के पेज पे आता हूँ मैं, कि मैं सर्विसेज के पेज के ऊपर कैसे डिटेल दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, ये जो सर्विसेज का पेज है इसके ऊपर मैं ये कैसे डिटेल दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इस पे आ जाते हैं और इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पहले मैं बैक एंड का कोड दिखाता हूँ, फिर फ्रंट एंड का दिखाऊंगा। एडमिन को करूँगा कंट्रोल, वेब के अंदर जाऊँगा, ये मैं सर्विसेज कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं मोड के, जिनको हम यूज़ करेंगे ग्रिड और स्टाइल व्यू में देखने के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो अभी मेरा ये डाटा है ग्रिड व्यू में आ रहा है, अब हमने इसको स्टाइल व्यू में देखना हो, लिस्ट व्यू में, तो इस तरह ये इस चीज़ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये वेरिएबल क्रिएट करना है, उसके बाद सॉर्टिंग के लिए सॉर्टिंग का डिफ़ॉल्ट दे देना है, और यहाँ पे एडवांस सॉर्टिंग पर पेज साइज, कैटेगरी आईडी, सर्विस आईडी, सिटी, सब कैटेगरी, टाइटल, मिन प्राइस और मैक्स प्राइस, ये जो वेरिएबल्स हैं मैं इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ, और इनके लिए और एडवांस सॉर्टिंग इन चीज़ों के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद माउंट फंक्शन के अंदर आपने मिन प्राइस और मैक्स प्राइस को दे देना है। उसके बाद एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया मेथड विद स्विच टू ग्रिड व्यू। ठीक हो गया, ये ग्रिड व्यू, और यहाँ पर मैंने एक और मेथड किया लिस्ट व्यू। जब ग्रिड व्यू होगा तो ग्रिड व्यू को दिखाएगा, जब ये एक्टिव होगा तो इसको दिखाएगा। और काउंट व्यूज़ का एक फंक्शन लिखा है कि कोई भी बंदा किसी सर्विस पे क्लिक करेगा तो उसके काउंट को भी वो ऐड करेगा। ठीक है, नीचे है ये ऐड टू कार्ट का फंक्शन, कि ऐड टू कार्ट के अंदर हम कैसे कोई सर्विस ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि कार्ट इंस्टेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, तो वो क्या करे, उसके सबसे पहले वाले काउंट की इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर ले, और वहाँ पे मैं कर रहा हूँ उस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में यूज़र की आईडी चेक कर रहा हूँ। अगर यूज़र की आईडी और सर्विस प्रोवाइडर आईडी ये वाली दोनों सेम हो, ठीक है, तो वो क्या करे, सेम ना हो तो क्या करे, हमें पहले वो कहे कि प्लीज़ कंप्लीट योर बुकिंग विद द करंट सर्विस प्रोवाइडर बिफोर सेलेक्टिंग द अनदर। क्योंकि इसके अंदर सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है सर्विस बुकिंग के। अब मैं बताता हूँ इसका ये क्यों मैंने इम्प्लीमेंट किया। अब हम सिंपल एक कार्ड के अंदर कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसके अंदर हमें कोई टेंशन नहीं होती कि जितने मर्जी प्रोडक्ट ऐड कर ले और जिस मर्जी वेंडर के ऐड कर ले। लेकिन इन केस में ये है, सपोज उसने 5-6 सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। अब जब वो बुकिंग के ऊपर जाएगा तो वो वहाँ पे टाइम मेंशन करेगा, ठीक है, कि कौन से टाइम के ऊपर बंदे ने आना है। अब उसने 5-6 सर्विसेज बुक की हुई तो सारी सर्विसेज को एक टाइम पर वो थोड़ी यूटिलाइज़ कर सकता है। ठीक है, वो टाइम शेड्यूल जो ऊपर नीचे हो जाएगा जिसकी वजह से वो मसला हो जाएगा। तो उस चीज़ को मैंने अवॉइड करने के लिए ये कंडीशन पुट की है। अगर तो वो दोनों सेम ना होंगे तो ये दिखाया, अगर सेम ही होगा यानी कि सेम ही प्रोवाइडर की सर्विस दूसरी सर्विस बाई कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, डिफरेंट कर रहा है तो वो उसको ये दिखाएगा, अगर दोनों प्रोवाइडर एक हैं तो वो उसको ऐड कर लेगा एक क्वांटिटी को। ठीक हो गया। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मेरा ऐड टू कार्ट कैसे वर्क कर रहा है। और यहाँ पर मैं 4 चीज़ें दे रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडर आईडी, नेम और प्राइस। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक स्टैटिक सर्च सर्विसेज के नाम से फंक्शन क्रिएट किया हुआ है इसके मॉडल के अंदर, सर्विसेज के मॉडल के अंदर। ये देखें, ये वाला, ठीक है, उसको मैं अपने, इनको मैं क्लोज कर लूँ एक दफ़ा।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उनकी कंडीशन लगाई हुई है कि पहले वो चेक करे, सेल्फ खुद ही चेक करे, स्टेटस एक्टिव हो और अप्रूव्ड हो, तो उनके ऊपर ये सॉर्टिंग होगा है कि टाइटल कोई अगर सर्च करता है तो उस क्वेरी के अंदर से उस टाइटल के डाटा को भेजे। फिर सिटी, फिर कैटेगरी आईडी, फिर मैंने सर्विस टाइप आईडी लगाई है, एडवांस सॉर्टिंग लगा दी है, मिन प्राइस और मैक्स प्राइस लगा दी है, फिर मैंने सॉर्टिंग लगा दिया असेंडिंग डिसेंडिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। और उसके लास्ट के ऊपर पैजिनेशन करके और पोजीशनिंग के ऊपर मैंने की है, पोजीशन के ऊपर भी मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पर पेज पैजिनेशन पास करके उस क्वेरी को रिटर्न कर रहा हूँ, सर्च मेथड को जो मैंने यहाँ पर कॉल किया। और इधर मैं उन सारे डाटा को पास कर रहा हूँ, दिस टाइटल, दिस सिटी, दिस कैटेगरी आईडी। लेकिन आप एक चीज़ क्या रखिएगा, आपने यार एक तो ये बंद हो जाता ना, ये बड़ा काम ख़राब करता है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जिस तरतीब के अंदर ये डाटा यहाँ पर आप ले रहे हो उसी तरतीब में ये डाटा यहाँ पर पास भी करना है। आगे पीछे करोगे तो उनकी वैल्यू आगे पीछे हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो ये आप देख लें सारी तरतीब पूरी पर पेज, ठीक है। और नीचे मैं कैटेगरीज पास कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सर्विसेज टाइप भी पास कर रहा हूँ और इनकी मैंने अरे जो है अपने कंपोनेंट को पास कर दी हुई है, ठीक है। अब जो आ जाते हैं इसका फ्रंट एंड देख लेते हैं और इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर जो पहला हमारा फ़िल्टर का सेक्शन है वहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सर्च का दे दिया है और ये मैंने कैटेगरीज़ का और टाइप्स का, इनके कंपोनेंट्स में भी दिखाता हूँ, बाय लोकेशंस का, मिन प्राइस का और मैक्स प्राइस का। और यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ जितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड आ रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी सॉर्टिंग्स, ये वाली सॉर्टिंग्स का डिटेल को मैं ऐड कर रहा हूँ कंपोनेंट्स को। और यहाँ पर मैं अपना ग्रिड और व्यू का लगा रहा हूँ कि वायर क्लिक के ऊपर स्विचेस करवा रहा हूँ, ठीक है। स्विचेस करवाने के बाद यहाँ पर मैं उन स्विचेस को व्यू करवा रहा हूँ कि अगर तो लिस्ट हो तो लिस्ट को डिस्प्ले करेगा, इसको, ये लिस्ट वाले व्यू को, ठीक है। अगर तो वो ग्रिड व्यू को होगा तो वो ग्रिड व्यू को ही दिखाएगा और किसी को नहीं दिखाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर मैं इमेजेस का क्या करता हूँ, सबसे पहले सर्विसेज डायरेक्टरी चेंज करता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ इसी डिटेल के ऊपर ही मैं इसके क्या कर रहा हूँ, व्यूज़ को भी काउंट कर रहा हूँ, का वायर क्लिक के ऊपर ही दे रहा हूँ ताकि जैसे इस पर क्लिक हो तो वो व्यू भी ऐड कर दे इसके अगेंस्ट, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं उसको कैटेगरी और सब कैटेगरी के ज़रिए भी व्यू करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सर्विस टाइप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसका फीचर दिखा रहा हूँ कि वो फीचर्ड क्या है, वीआईपी है क्या है, ठीक है, टॉप है, नॉर्मल है, नॉन फीचर्ड है, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र का नाम, प्रोवाइडर का नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पर उसकी फ़ोटो डिस्प्ले कर रहा हूँ। और यहाँ डिटेल के ऊपर जहाँ जहाँ पे सर्विस की डिटेल वाला होगा वहाँ पे मैं वायर क्लिक का भी ऐड करूँ। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी के हिसाब से और सब कैटेगरी के हिसाब से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं उसके काउंट व्यूज़ करके शो करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं उसकी प्राइस और ड्यूरेशन दिखा रहा हूँ और लास्ट के ऊपर मैं इसकी डिटेल भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ को मैंने यहाँ पर ठीक किया है, ऐड टू कार्ड का फंक्शन जो है, वेयर इज़ माय ऐड टू कार्ड का फंक्शन, शायद मैंने यहाँ से रिमूव किया है या मैंने अभी दिखाया नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ड का मैं ऑप्शन नहीं दे रहा यहाँ पर क्योंकि यहाँ से कस्टमर ज़्यादा
देखने के बजाय वो क्या करते हैं कि उसकी डिटेल भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं दिखा रहा। ठीक हो गया। अब वो क्या करता है, अगर यहाँ पर वो क्लिक करके ये उसकी डिटेल देख सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड टू कार्ट का फंक्शन लगाया हुआ है, और इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पर भी ऐड टू कार्ट का फंक्शन इम्प्लीमेंट करें, तो हमने मेथड पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। हमें क्या करना है, सिर्फ इसको यूटिलाइज़ करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, वो हम पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपको करना है तो आप इसके साथ ही जो है इसके नीचे एक और बटन ऐड टू कार्ट का भी लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह मैं वो दिखा रहा हूँ सर्विसेज का। अब जैसे ही अब ये आपके पास सर्विसेज का आ गया है, अब सपोज अब मैंने कोई सर्विस, स्पेसिफिक सर्विस सर्च करनी है, लाइक मिरर, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मिरर की दिखा देगा मुझे। ठीक हो गया। और मैंने अगर स्पेसिफिक किसी कैटेगरी बेस के ऊपर करनी है तो मैं क्लीनिंग की करूँगा, ये क्लीनिंग की दिखा देगा हमें। और इसी तरह मैंने टाइप की करनी है, फिजिकल की करनी है, तो वो मुझे क्या करेगा, फिजिकल टाइप्स की सारी दिखा देगा सर्विसेज। अब मैंने करनी है सिटी बेस्ड, फॉर एग्जांपल मैं मुल्तान की करता हूँ, तो ये हमें मुल्तान की कैटेगरीज दिखा देगा। ठीक हो गया, जो करंटली एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, यानी कि लोकेशन वाइज जो भी हमें देखनी होगी वो हम लोकेशन वाइज भी सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद हम प्राइस को भी सर्च कर सकते हैं। अभी वो क्या कर रहा है, 10 और 10,000 के बीच में हमें शो करा रहा है। अब हम क्या करते हैं, 10 और सपोज मैं 100 करता हूँ, तो वो क्या करेगा, 10 और 100 के बीच में जितनी भी कैटेगरी सर्विसेज हैं हमें वो डिस्प्ले करेगा। ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट वो किसकी शो करता है, 10,000 के बीच में हमें शो करवाता है। अच्छा, ये हो गया हमारे लाइव फिल्ट्रेशन के लिए। अब एडवांस सॉर्टिंग, अब हमने क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ वीआईपी सॉर्टिंग की ही कैटेगरी सर्विसेज दिखाई दें, तो वो क्या करेगा, अब हमें सिर्फ वीआईपी की दिखा रहा है। इसी तरह हम फीचर्ड की देख सकते हैं, सिर्फ फीचर्ड की दिखाएगा। अब टॉप की कर सकते हैं, अब सिर्फ टॉप की दिखाएगा। और नॉन फीचर्ड की करते हैं तो नॉन फीचर्ड की दिखाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, सारी दिखाएगा, लेकिन उसकी पोजीशनिंग के हिसाब से। इसके बाद लो टू हाई प्राइस करता हूँ, क्या करेगा, सबसे कम से और हाई की तरफ जाएगा। हाई टू लो करता हूँ, सबसे मैक्सिमम टू लो की तरफ जाएगा। और डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट दिखा देगा। ठीक है, और इसी तरह हम पेज का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हमें अब देखो 32 दिखा रहा है, पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखाता है, 20 दिखा रहा है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं 32 कर देता हूँ, तो 32 रिकॉर्ड्स हमें शो कराएगा एक पेज के ऊपर। इसी तरह अगर हम 48 देखना चाहते हैं तो ये देखें, अब 48 रिकॉर्ड्स हमें पेज के ऊपर शो करवा रहा है। ठीक है, इस तरह ये सॉर्टिंग है। और इसी तरह अगर अब हमने इसकी मैंने लिस्ट व्यू देखनी हो तो ये लिस्ट व्यू के अंदर दिखाएगा, लेकिन लिस्ट व्यू के अंदर हमने इमेजेस का पाथ चेंज नहीं किया, तो वो इमेजेस का पाथ हमें एरर दे रहा है, इमेजेस ब्रोकन शो करा रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं मिनिमाइज कर लूँ ताकि पता लग जाए एंड कहाँ पे हो रहा है। और ये हमारा लिस्ट व्यू का है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं इसको क्या करता हूँ, सर्विसेज डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, सॉर्टिंग मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी थी। अब मैंने लिस्ट व्यू वाला दिखा रहा हूँ। ये देखें, लिस्ट व्यू के हिसाब से भी चीज़ें अब सही मायनों में डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरह मैंने सर्विसेज का बैक एंड और फ्रंट एंड हैंडल किया है। आपने क्या करना है, सेम इज़ एज इट मैंने कॉपी किया हुआ है, आपने भी ऐसे ही इसको लेकर चलना है। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगली चीज़ें एक्सप्लोर करवाऊँगा मैं। ठीक है, कि बाकी चीज़ों को मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, दोस्तों के साथ और क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट अल्लाह हाफिज़।